Hello dear students. Now we are going to see theorem number 3 of 3.4 section in the book Elements of Vector Calculus, authored by N. Saran and R. Prasad. तो इस थ्योरम को समझने के लिए दिस थ्योरम इज आल्सो डिपेंड ऑन कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों को रिवाइज करना होगा। और ये बेसिक चीज़ रिवाइज इसलिए करनी है क्योंकि मुझे कर्ल डिफाइन करना है, राइट। तो कर्ल कैसे डिफाइन होता है इसके ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले हम रिवाइज करते हैं हाउ टू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors a bar and b bar. So suppose that this a bar is a vector having components a1, a2 and a3. ठीक है? And the another vector b bar is having components b1i plus b2j plus b3k. Now I would like to take its cross product, that is a bar cross b bar. So by definition you have to draw the determinant. The first row of the determinant is I bar, j bar and k bar. The first vector is a bar, that's why I am putting components of a bar in the second row of this determinant. So this is a1, a2, a3, and the second vector is b bar, so that I am interested to write the component of b bar in the third row of this determinant. So it is b1, b2 and b3. Now what is the technique to solve this determinant? Actually we are just solving the determinant. The first row, first element is I bar. You just forget the first row and first column. You will get these four elements. Take its determinant. So a2 b3 पहले ये करना है, a2 b3 minus product of these two elements, that is a3 b2 minus second element of the first row, that is j bar, and now forget the first row and second column. You will see these four elements, ये दो a1 b1 and a3 b3. Take its determinant. तो a1 का b3 के साथ, तो a1 b3 minus a3 का b1 के साथ, so it is a3 b1 plus third element of the first row, third element of the first row is k bar. Now eliminate this or this and you are getting these four elements. Take its determinant. So it is a1 b2 minus a2 b1. तो ये जो आंसर आएगा, दिस इज अगेन इन टर्म्स ऑफ आई जे के, सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन वेक्टर होता है, इसलिए उस क्रॉस प्रोडक्ट को कभी कभी वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है. क्यों जानना है हमें ये? क्योंकि हमें डिफाइन करना है कर्ल ऑफ फील्ड. तो कर्ल ऑफ एनी फील्ड एफ बार कैसे डिफाइन होता है? तो आपका जो डेल ऑपरेटर था, वो डेल ऑपरेटर और इस एफ बार का आपने क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ कर्ल ऑफ एफ बार. ठीक है, ये हमें अगले थ्योरम में इसकी ज़रूरत है, इसलिए इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन रिवीजन हमने किया. अब देखते हैं एक्चुअल थ्योरम नंबर 3. पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द थ्योरम. प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition that the field f bar is conservative is that curl of that field f bar is equal to 0. मतलब अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है, अब आपको पता है कंजर्वेटिव मतलब डिपेंड ऑन ओनली एंड पॉइंट्स, नॉट डिपेंड ऑन पाथ. तो कोई फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल हमेशा 0 आता है. या किसी भी फील्ड का कर्ल 0 अगर हमें फाइंड आउट होता है तो वी कैन से दैट फील्ड इज कंजर्वेटिव. ठीक है, तो ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होने की वजह से
हमें प्रूव करना पड़ेगा दोनों वे से। तो पहला वे है कि सपोज द फील्ड एफ बार इज कंजर्वेटिव। ठीक है, नाउ व्हाट वी शुड प्रूव, द claim is to prove that curl of f bar, that is nothing but del cross f bar is equal to 0. Okay, so since f bar is a conservative, since f bar is conservative, in the last theorem we have seen when the field is conservative, then therefore according to previous theorem, there exists a scalar function phi such that f bar is nothing but gradient of that phi. ये पिछले थ्योरम का रिजल्ट हमने यहाँ लिया है. So now we have to show that this is equal to 0. So I am started with LHS del cross f bar, del keeping as it is, cross, instead of this f bar I am putting this value del of phi bar. Right? Now you know that this is the one vector, this is another vector, और दो वेक्टर का आपको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट. This is I bar, J bar and K bar. The first vector is del, तो इसका पहला कंपोनेंट होता है डो बाय डो एक्स, इसका डो बाय डो वाई, और थर्ड होता है डो बाय डो जेड. और इसका जो है फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा डो फाई बाय डो एक्स, डो फाई बाय डो वाई and dou phi by dou z. Now just we have to solve this determinant. अब इस डिटर्मिनेंट में पहले हम आई बार लेते हैं और फिर इन दोनों का एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस बिकॉज दीज आर द ऑपरेटर्स, दिस इज द ऑपरेटर, तो हम इसको एक्शन में लेंगे. तो ये डो बाय डो वाई ऑफ दिस मतलब डो टू फाई ऑफ डो वाई एज वेल एज डो जेड माइनस इन दोनों का एक्शन, that is dou 2 phi by dou z and dou y. If you see both the terms are same with opposite sign, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली j के साथ भी वही होने वाला है. तो j के साथ हम लेंगे तो ये हो जाएगा dou 2 phi by dou x dou z माइनस dou 2 phi by dou x dou z. और k के साथ भी हम k का कंपोनेंट निकालेंगे तो ये दोनों का एक्शन होगा, दैट इज डो टू फाई बाय डो एक्स डो वाई माइनस डो टू फाई बाय डो एक्स डो वाई. तो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई एक दूसरे के साथ इन ईच टर्म एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड RHS. तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली प्रूव हो गया. नाउ वी आर थिंकिंग टू प्रूव सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कॉन्वर्सली suppose that curl of any field f bar is equal to, that is del cross f bar is equal to 0 मान लेना है. ये पहले मान लेना है. Here consider f bar is equal to f1 I bar plus f2 j bar plus f3 k bar. ये हम सपोज कर रहे हैं. ठीक है. नाउ अभी हमें को आगे करना ये है कि लेट अस कंसिडर वन फंक्शन फाई. लेट अस डिफाइन ये हम डिफाइन कर रहे हैं एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड. अब इसको डिफाइन कैसे करना है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x, दिस इज द कैपिटल F इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस अगला इंटीग्रेशन y0 टू y f. अब यहाँ पर क्या करना है, x को कांस्टेंट लेना है, तो कोई भी कांस्टेंट लेंगे हम, x0 से डिनोट करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल dy. एंड तीसरा जो है z0 टू z, यहाँ पर x भी कांस्टेंट लेना है, y भी कांस्टेंट लेना है और z को वेरिएबल रखना है. सो यू आर डिफाइनिंग लाइक दिस. ओके,
तो इससे फ़ायदा ये होगा, इसको ऐसे डिफाइन करने की खास वजह यह है कि जब हम इस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकलेगा, ये दोनों, क्योंकि ये y के फंक्शन है, ये z का फंक्शन है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ पहले इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा f ऑफ x y z। ठीक है, लेकिन जब हम डो फाई बाय डो y लेंगे तो क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि ये क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो ये एज इट इज़ रहेगा एक्स जीरो टू एक्स डो बाय डो वाई, क्योंकि आप y से ले रहे हो, ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड। और जब यहाँ वो आएगा, क्योंकि ये y का फंक्शन है, तो ये डेरिवेटिव और डो बाय डो वाई कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई जेड। और क्योंकि ये z का फंक्शन है इसलिए इसको ज़ीरो कर देंगे। और जब आप डो फाई बाय डो जेड लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स ज़ीरो टू एक्स डो बाय डो जेड ऑफ एफ, ये ज़ीरो हो जाएगा और इसका आपको मिलेगा प्लस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एंड जेड। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। नाउ हमने सपोज किया है ये सपोज किया है, तो आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट वगैरह आपको पता है, पिछले हमने निकाला है ये यहाँ डिटर्मिनेंट ये, लेकिन ये फाई का है। अब हम एफ का निकालेंगे, तो नाउ लेट अस फाइंड इट इज गिवन दैट क्या दिया है, कर्ल ऑफ एफ बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कर्ल ऑफ एफ बार को आपको डिफाइन करना होगा, दैट इज आई जे के, यहाँ आएगा डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, और एफ बार के कंपोनेंट आएंगे f1 f2 f3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ज़ीरो। आप जब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आई बार, और यहाँ मिलेगा डो f3 बाय डो y माइनस डो f2 बाय डो z माइनस j, यहाँ पर आपको मिलेगा डो f3 बाय डो x माइनस डो f1 बाय डो z प्लस k, और यहाँ मिलेगा आपको डो f2 बाय डो x माइनस डो f1 बाय डो y। तो ये आपको कर्ल मिला एंड दैट इज व्हाट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम सबसे पहले पहला कंपोनेंट ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट को ज़ीरो मान लेते हैं। तो डो f3 बाय डो y, डो f3 बाय डो y माइनस डो f2 बाय डो z इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट कंपोनेंट को ज़ीरो माना है, फिर हम सेकंड को भी मानेंगे अलग से ज़ीरो और थर्ड को भी मानेंगे। तो पहले फर्स्ट कंपोनेंट का क्या हो गया, इसको ज़ीरो मानने से सेकंड टर्म को हम राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डो f3 बाय डो y इज इक्वल टू डो f2 बाय डो z, है ना। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और तीसरा कंपोनेंट अगर हम मानते हैं, तीसरा ये एक्स वाई का, ये भी ज़ीरो होने वाला है। तो डो f2 बाय डो x, डो f2 बाय डो x माइनस क्या है, डो f1 बाय डो y, डो f1 बाय डो y इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ k बार। तो ये हमें आंसर देगा डो f2 बाय डो x इज इक्वल टू डो f1 बाय डो y। सिर्फ हमने इस टर्म को राइट साइड में लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखिए इट्स वेरी सिंपल कि आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको मिला था डो फाई बाय डो एक्स दैट इज एफ, है ना। डो एफ बाय डो वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज डो एफ, इसको पेन में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, आप भटकिए मत रास्ते से। अब मैं ये ले रहा हूँ, ये। तो वी नो दैट डो एफ बाय डो वाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट डो एफ
by dou y, is it right? No, dou phi by dou y, f नहीं है, phi dou y is equal to integration from x0 to x f of x0 yz, is it right? Not, it is dou by dou y of f of x y z. ये x है, ये dou by dou y dx प्लस यहाँ आ जाएगा f ऑफ x0 yz. ये था, देख लीजिए एक बार, बराबर है, इसको लिया हमने. अब इसमें क्या करना है, ये देखिए डो एफ बाय डो वाई यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, डो एफ बाय डो वाई. तो डो एफ बाय डो वाई जो है उसकी वैल्यू हमें एक्चुअली निकालना है. तो एक्चुअली हमने है ना डिफाइन ऐसे करना चाहिए था कि इसको f1, इसको f2, इसको f3 मान लेते हैं. ठीक है, तो f1 हो गया, ये f1, ये f2, और ये f1 और ये f3. ठीक है, तो बस f1 f2 लेना हम भूल गए थे, तो यहाँ हम f1 f2 ले लेते हैं, f1 एंड f2. ओके, तो अब ये डो f1 बाय डो y हो गया, उसका वैल्यू है डो f1 बाय डो y का डो f2 बाय डो x. ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन x0 टू x, इसके जगह आ जाएगा डो f2 बाय डो x dx, और ये कीपिंग हम एज इट इज रखेंगे इसको x0 y और z. राइट, अब देखिए ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन भी है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा क्या, f2. f2 और उसके लिमिट्स होंगे x0 टू x, और ये हम एज इट इज रखेंगे x0 y z. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि f2 इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x y z, तो उसमें x के जगह अपर लिमिट x डालना है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस लोअर लिमिट में x के जगह x0 डालना है. तो अपर लिमिट जब हम डालेंगे तो x के जगह x, y z एज इट इज, माइनस f2 है, f2 में x के जगह x0 रखेंगे तो x0 y z है ना, इसका लोअर लिमिट हो गया. और ये आपकी जो आखिरी टर्म है ये एज इट इज रखेंगे, f2 x0 y z. तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और आपको मिला डो फाई बाय डो y का आंसर f2. ये देखिए सिर्फ f2 मिला, और ऑलरेडी आपको डो फाई बाय डो x का आंसर f1 मिल चुका है. और फिर सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हो, सिमिलरली डो फाई बाय डो z का आंसर आपको मिलेगा f3. राइट, तो ये एक बार हो गया कि किसकी क्या वैल्यू आ गई, तो बस ये वैल्यू को हम अब रखेंगे हमारे तरीके से. तो हमारा जो तरीका है वो ये है कि डेल फाई, दैट इज डो फाई बाय डो एक्स आई प्लस डो फाई बाय डो वाई जे प्लस डो फाई बाय डो जेड के, है ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई. और इसमें डो फाई बाय डो एक्स का आंसर f1 आ रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे f1 i, इसका f2 आ रहा था f2 j, और इसका आ रहा था f3 k, और ये जो है वो f बार है. तो आपने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म किया, दैट इज यू हैव प्रूव्ड दैट f बार इज इक्वल टू डेल फाई. राइट, एंड जब भी कोई फील्ड किसी स्केलर के ग्रेडियंट में आप लिखते हो तो वो थ्योरम के हिसाब से बाय थ्योरम f bar is conservative. f bar is conservative. तो हमने कर्ल को 0 माना, देखो यहाँ पर कर्ल को 0 सपोज किया, ये यहाँ पर सपोज कर्ल को 0 किया, और फिर ये एक्सप्रेशन से हमने ये प्रूव करके बता दिया कि f bar is conservative. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए.